Yes. Please, sir. स्टार्ट कर दे किशन जी, करें स्टार्ट? Yes. Please. Good evening all. Warm welcome for today's webinar on topic cyber security on behalf of ISHRE Jaipur. ISHRE stands for Indian Society of Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineers. We at Jaipur have completed our 13 years in service of society in the field of HVAC and R. We have 250 plus members and growing. One student, one chapter, sub-chapter as Jodhpur, 10 student chapters. And we have as on date completed our 15 webinars in this society years. There is a lot of benefits for ISHRE members. Some of our member get full access to ISHRE Knowledge Bank on ISHRE website. It includes HVAC dictionary, case studies, technical articles, technical videos, technical groups, and technical blogs. Free bi-monthly ISHRE AC and R journals, special discount rates on ISHRE publications, provides a platform for effective marketing and launching of new products and technologies through exhibitions, product presentations, and advertisement. Unlimited access to knowledge bank, invitations to conferences, seminars, workshops, expos, learning and skill development, networking opportunity with HVACR fraternity. We have certified professional ICP courses, workshops, e-learning, diploma in AC and R, provides an excellent forum for professional development and continuous training and retraining on both fundamentals and latest products and technology available worldwide. Mr. Kishan, please share screen for how can any member join the ISHRE. This is our website where you can join ISHRE online. The Indian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers was founded in 1981 at New Delhi by a group of eminent HVACR and professionals. The objective of ISHRE: advancement of the art and sciences of heating, ventilation and air conditioning, refrigerating, air engineers and related services, continuing education of members and other interested persons in the said sciences through lectures, workshops, product presentation, publications, and exhibition. During this COVID, we are reaching our members with these kind of webinars on different topics. Our mission to promote the goals of society for the benefit of general public. Towards this objective, the chapters of the society participates and organize activities to protect the environment, improve indoor air qualities, which is most critical point right now. Indoor air quality is during this COVID. We have launched guideline for HVAC uses
how we can use air conditioning. We have a lot of programs. Our major exhibition is ACREX, where you can visit exhibitors all over from all over world. We have lot of student activities at different colleges, engineering colleges, where students get benefits with the industry latest trends field. We have research and development facilities on current requirements, current situations of environment, HVACR, and all other related to environment. And now I would like to invite our chapter president, Mr. Kishan Khatri, to please introduce our today's expert, Mr. Manish Kumawat, for today's webinar on cyber security. Over to you, Mr. Kishan. Thank you, sir. Thank you, and I would like to welcome all the participants here who have joined the session. Again, this session is a bit different from a cold, we can say, a core working of HVAC. However, this topic is also very important in today's time. Now we all are going digital to a digital world. In this digital world, we have to understand how the system goes, system works. As this digital platform may include the payments to one party to another party. If your platform of digital world is hacked by someone, it will be very difficult to rectify, as the people can transfer your monies to their accounts. So there will be very difficulties in this time period. To understand that thing, that how we can smoothly use the digital platform, whether it could be computers, it could be laptops, mobiles, we have come up with one session. That session is cyber security. I would like to introduce a bit about Mr. Manish Kumawat. He's our expert for today's session. So Mr. Manish Kumawat is a computer science engineer, and he has done his MTech from BITS Pilani. He has done his MTech in computing systems and infrastructure. He is a senior security analyst in Iris Software Technology Private Limited. He has delivered 50+ cybersecurity workshops in engineering college across India. He has delivered corporate trainings in penetration testing as well. He has achieved Certified Ethical Hacker ITIL. This is again a credential. Microsoft Certified Azure Security Engineer Cyber Security certifications he has. He is expert in web application penetration testing, mobile app penetration testing, network security assessment, API security testing, SIEM, malware analysis, cloud security, capture the flags. A lot of technical things are there, and definitely we will not get in details about these technical sessions, but basic things which we do on a regular daily basis, it will be explained in today's session. He found critical security bugs in Google, Microsoft, Nokia, Intel, etc., and got listed in 10+ Hall of Fames. This is a big achievement. He has his own security tutorials, new blog where beginners can learn ethical hacking from the basics. So he has done tremendous work in his field, and we are happy, we are glad that Mr. Manish Kumawat has come up on the platform of ISHRE Jaipur chapter for the benefits of ISHRE members. Thank you, Mr. Manish. I would like to welcome you on the platform of ISHRE Jaipur chapter. The session is over to you, please. Manish. Manish, I have made you presenter.
You may open the presentation. Please unmute yourself. Yes. Can you also please turn on your camera? Yes, your So presentation. Can you please come to the first slide? yeah, please 1 second. You may turn on your camera if you want. Okay, yeah, it is visible now. First slide, first slide would be of the disclaimer. We can start from that slide. Yeah. Disclaimer. Yes. Okay. All right. Yes, please. So I have to Please read over out to you, this one? Manish. No, that's okay. Okay. So first of all, I would like to start from the basics, like what is internet? Internet is global network of interconnected computers, where one computer can be connected to any other computers in any portion of the world. So in the internet, where in which portions in our life we are using internet, large volume of informations, online reading, books, and news and all, journals, online banking, social networking, shopping, entertainment, websites like online movies Manish, and like that. Manish, I'm interrupting you. Our participants want the session in both Hindi and English. Would it be okay for you? Okay. Okay, thanks. All right. ओके सो आज के टाइम पे जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो हम कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइक न्यूज़ हम लोग देखते हैं सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक जीमेल और ऑनलाइन जो वीडियोस हम देखते हैं लाइक हम टोरेंट से वीडियो डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से देखते हैं तो इन आवर लाइफ इन मैनी पोर्शंस वी आर यूजिंग इंटरनेट सो साइबर क्राइम हम धीरे धीरे हम आगे साइबर क्राइम क्या होता है कैसे आजकल फ्रॉड हो रहा है और कैसे हम उससे बच सकते हैं आई विल डिस्कस इन कंप्लीट वेबिनार अबाउट ऑल द सिनेरियोज ऑलमोस्ट आई विल कवर द थिंग्स आज के टाइम पे जो भी साइबर क्राइम केसेस हो रहे हैं और उसको कैसे हम बच सकते हैं उस पर मैं फोकस करूंगा सो आज के टाइम पे साइबर क्राइम जो इंडिया है इंडिया का जो 5th नंबर पे है इंडिया पूरे वर्ल्ड में एंड फर्स्ट वन इज यूएसए चाइना जापान यूएई एंड 5th नंबर इज इंडिया सो many of victims in our life you can see even in my friends and family members the things has been happened so अगर आज की हम बात करें तो हम एक एक पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं कि मेरे रिलेटिव में जैसे लेट सपोज 10 फ्रेंड हैं तो मैं एक एक को कॉल करके नहीं समझा सकता कि यार ऐसे करना है तो ये हमारी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को कैसे इस चीज के लिए अवेयर रखें साइबर क्राइम से तो साइबर क्राइम मॉडर्न सोसाइटी में कहाँ कहाँ पे हो सकता है ऑनलाइन जैसे फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं तो द फर्स्ट सीन लाइक इफ यू आर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स वो आपके हैक हो सकते हैं आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो सकते हैं लेट सपोज आपके गूगल पे अकाउंट से को यूज करके और आपके अकाउंट से कोई सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से आपको बेवकूफ बना के आपके अकाउंट से पैसे फ्रॉड हो रहे हैं दैट्स द थिंग एंड दिस इज like cyberbullying like there are a lot of scenarios in the cybercrime we will discuss one by one in the detailed way so regions of the cybercrime क्यों हो रहा है मतलब एक तो जैसे उनको पैसा चाहिए डिफेमेशन उनको हमकी करनी है हमारी करनी है डेटा उनको चोरी करना है उनको पर्सनल रिवेंज लेना है क्या चाहिए उनको तो ये हमारे पास में कुछ रीजंस हैं कि साइबर क्राइम क्यों होता है सोशल लाइफ में फाइनेंशियल गेन की मनी थेफ्ट
जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई कॉल आती है कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम एसबीआई बैंक और आपका एटीएम डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये सब, आपके पास ओटीपी आता है, मैं इसको वापस से एक्टिवेट कर देता हूँ। दिस काइंड ऑफ थिंग कि वो ओटीपी जैसे आप उसको बताते हो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग फाइनेंशियल गेन। इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, कि अगर आप किसी वुमेन को इंसल्ट कर देते हो, वो रिवेंज लेने के लिए वो सब कर रहे हैं, या यार उसने गलत काम किया चलो उसके साथ ऐसा करते हैं, तो इट माइट बी एनी रीजन। डिफेमेशन, डिफेमेशन की आपको डिफेम करने के लिए, जैसे मुझे आपको डिफेम करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपकी वेबसाइट हैक कर रहा हूँ, या फिर मैं आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसी इलीगल काइंड ऑफ इमेजेस मैं पोस्ट कर देता हूँ, और उसको मैं फेसबुक पे या सोशल नेटवर्किंग पे लिंक शेयर कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट के। दिस काइंड ऑफ थिंग डिफेमेशन। पर्सनल रिवेंज, पर्सनल रिवेंज यार कि वन ऑफ माय फ्रेंड की, ठीक है, उससे मेरा जो झगड़ा हो गया, अब मुझे पर्सनल रिवेंज चाहिए, या मुझे उसका फेसबुक अकाउंट हैक करना है, लाइक दैट, और मुझे उसके फ्रेंड्स को कुछ उसके बारे में गलत गलत पोस्ट करने हैं उसके, लाइक दैट। सो दिस इज काइंड ऑफ पर्सनल रिवेंज। डेटा थेफ्ट, डेटा थेफ्ट लाइक दैट कि एनी कंपनी, लाइक रेपुटेड कंपनी की जो अच्छा कमा रहे हैं, और उसके जो डेटा है वेबसाइट पे, जो इंक्वायरीज हैं, जैसे जो डेली बेसिस पे इंक्वायरीज आ रही हैं, जैसे आप लोगों ने रजिस्टर किया है इस पे वेबिनार पे, अगर गो टू वेबिनार हैक हो जाता है, देन ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन हैज बीन लीक्ड टू द हैकर्स। हैकर्स के पास में आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, लेट्स सपोज। सो दिस काइंड ऑफ थिंग डेटा थेफ्ट, कि these 30 peoples are interested in the webinars। अब आप लोगों के पास में फिर अब दूसरी कंपनी से एसएमएस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप हमारी भी वेबिनार अटेंड करो, दिस काइंड ऑफ थिंग। आप देखते हो कि एक किसी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते हो कहीं पे भी, लेट सपोज कि आपने शादी.com पे रजिस्टर किया, शादी.com से आपने रजिस्टर किया, और बाकी की कंपनी से भी, दूसरी मैट्रिमोनियल साइट से भी आपके पास में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं मेल्स, है ना। और ये आपने नोटिस किया होगा कि आप कहीं भी कोई भी एक सामान खरीदते हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे, तो आपके पास में बहुत ज्यादा जंक मेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं मेल्स में। इवन आज के टाइम पे देखा जाए तो हर किसी के मेल बॉक्स में 90% जो है वो जंक मेल्स आते रहते हैं दूसरी कंपनी से, मार्केटिंग मेल्स और दिस काइंड ऑफ थिंग। सो डेटा थेफ्ट, एक वेबसाइट से डेटा थेफ्ट हो जाता है, वो उसको इवन बेचते भी हैं कुछ लोग, बट डेटा थेफ्ट इज अ मेजर कंसर्न। ये है कुछ साइबर क्राइम के न्यूज। बैंक मैनेजर बताकर उड़ाए 5,000 रुपए। तो इस टाइप की जो 1 सेकेंड, इस टाइप की जो न्यूज है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक मैनेजर बताकर उड़ाए 5,000 रुपए। अगर आपके पास में कोई कॉल्स आती है किसी भी बैंक मैनेजर से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, एक सेम केस जो इस टाइप का केस है, वो अभी मेरे एक कजन के साथ में हुआ है। आई विल डिस्कस टू यू टू कि आप इन फ्यूचर आप इन सब चीजों से अवेयर हो जाओ। मेरे कजन के 24,000 रुपीज उसने गूगल पे से उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। एंड दैट इज वेरी वेरी फाइनेस्ट थिंग, मतलब फाइनेस्ट टेक्निक वी कैन से, कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये उसके अकाउंट में जा रहे हैं कि आपके अकाउंट में आ रहे हैं। और ट्रांसफर होने के बाद जब आपको मैसेज आता है, देन यू विल कम टू नो कि यार ये अब क्या होगा। और देन आप उसके बाद भी आपको नहीं पता होगा कि इसके बाद क्या स्टेप लिया जाए। तो अगर आपके पास कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी बैंक आपको कॉल नहीं करेगा, बैंक मैनेजर या इस तरीके से कोई कभी भी कोई बैंक आपको कॉल नहीं करता है। बैंक से अगर कोई कॉल आता है तो वो फीडबैक के लिए आता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बैंक ट्रांजैक्शंस में, या कोई किसी भी चीज से रिलेटेड। राइट। गवर्नमेंट बैंक एसबीआई से कभी भी कॉल नहीं आएगा, फीडबैक तो उनको ऑलरेडी पता है कि हमारा फीडबैक कैसा है, देन दे विल नॉट कॉल यू। सो प्राइवेट बैंक से आपको कॉल आती है, ओनली फीडबैक से रिलेटेड कॉल आएगी, या कभी कोई बिग ट्रांजेक्शन होने वाला है, मैलिशियस कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होने वाला है, देन दे विल कॉल यू कि ये ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से हो रहा है, देन यू आर डूइंग, और
some other malicious person are doing. So फ्लिपकार्ट को हैदराबाद के एक शख्स ने लगाया 20 लाख का चूना. व्हाट इज दिस कि फ्लिपकार्ट से 20 लाख का चूना किस तरीके से लगा सकता है? ये आप देखिए कि एक शख्स फ्लिपकार्ट पहले ऑर्डर देता है और फिर उन्हें रिसीव भी करता है, इसके बाद वो फ्लिपकार्ट को अपना ऑर्डर वापस करने की जानकारी देता है. इस दौरान वह फ्लिपकार्ट द्वारा भेजे गए सामान को नकली सामान से बदल देता था. तो इस तरीके से ये भी एक साइबर क्राइम है, जो फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी को भी 20 लाख का चूना लग सकता है. तो इवन दे आर नॉट सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम. सो फ्लिपकार्ट ठीक है, बड़ी कंपनी है, उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि 20 लाख जैसी कोई चीज, बट अगर आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाए तो आई थिंक दैट इज बिग अमाउंट फॉर द मिडिल क्लास फैमिली. हु आर द हु आर द साइबर क्रिमिनल्स? ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारा फेसबुक अकाउंट हैक कर रहे हैं? कौन है ये लोग? सो ये हमारे नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, डिसग्रुटन एम्प्लॉयज हो सकते हैं. जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और कंपनी से मेरी कुछ अनबन हो जाती है या कुछ विदाउट एनी रीजन, एंड लाइक दे आर फायरिंग मी, और इवन अगर मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, देन मेरे माइंड में अगर कुछ ऐसा आता है कि यार अब मुझे कुछ डिफेम करना है, या मैं उस मैनेजर का अकाउंट हैक करूंगा, या वो करूंगा, वहां के डायरेक्टर के ट्विटर अकाउंट हैक कर दूंगा, है ना? सो इस सब चीजों से इस तरीके के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो फायरिंग वाले, वो इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के केस में. सो हैकर्स जो हैकर्स कितने टाइप के होते हैं? हैकर्स अपने पास में 5 टाइप के होते हैं: ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज, एंड सुसाइड हैकर्स. सो ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं, दे आर मेलिशियस गाय. इनका जो काम होता है टोटली मतलब ये टोटली अंडरग्राउंड टाइप से काम करते हैं. किसी को नहीं पता होता है कि ये ब्लैक हैट हैकर है, और ये जो काम करते हैं अपना पूरा आईपी एड्रेस और सारी चीजें जो है अपना स्पूफ करके यूज करते हैं. जैसे अगर मुझे कोई वेबसाइट हैक करनी है तो मैं अपना आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, और ये सब स्पूफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं स्पूफिंग के, मतलब मास्किंग करने के लिए. तो ये वो सॉफ्टवेयर्स यूज करके मास्क अपना आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस मास्किंग करने के बाद ये उसको हैकिंग करते हैं, ताकि इनका आईपी एड्रेस और ये लीक ना हो और पकड़े ना जाएं. तो इनको इनको पकड़े जाने का डर रहता है. ऑलराइट. So, if you talk about white hat hackers and black hat hackers, both the hackers have same skills, but white hat hackers are doing good things like finding vulnerabilities in website, finding vulnerabilities in softwares. White hat hackers working in the IT companies or IT security companies to make secure the network, to make more secure the website. All right. And white hat hackers also research about the vulnerabilities, or like how can we more secure our assets. And black hat hackers, they are just हिडन वे में हैकिंग का एक कोई भी वे ढूंढते रहते हैं. जैसे फेसबुक हैकिंग करना है, फेसबुक हैकिंग का वो एक वे ढूंढते रहेंगे कि यार मैं कैसे फेसबुक अकाउंट हैक कर सकता हूँ. उसके बाद में वो ऐसा कोई वे ढूंढ के फेसबुक को बताएंगे नहीं. दे विल नॉट रिपोर्ट टू द फेसबुक, एंड उसको हिडन मोड में करते रहेंगे. जैसे कल को कोई मुझे बोलता है कि यार मुझे एक फेसबुक अकाउंट हैक करना है, इज देयर एनी वे टू हैक समवन फेसबुक अकाउंट? सो अगर आप इंटरनेट की बात करें तो देर इज नॉट एनी डायरेक्ट वे टू हैक फेसबुक अकाउंट, कि मुझे इस पर्सन का अकाउंट हैक करना है और मैं बस एक प्रोग्राम मैंने रन किया और उसके बाद में वो हैक हो गया. ऐसा कुछ कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है मार्केट में. हाँ, अगर बात करें कि कुछ सोशल इंजीनियरिंग टाइप से, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बना के उसका पासवर्ड चोरी करना, इस तरीके की जो चीजें हैं ये इनसे होता है. बट देर इज नो एनी डायरेक्ट स्क्रिप्ट, और कि मैंने रन किया और आई जस्ट गोट द पासवर्ड ऑफ समवन. सो देर इज नो एनी मेथड. सो अगर मैंने ऐसा कोई मेथड फाइंड आउट कर लिया है, देन मैं
लोगों से 10,000 15,000 20,000 पैसे ले लेके और मैं उसको टेक्निक को यूज किए जा रहा हूँ। फेसबुक विल नॉट कम टू नो कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब कोई वाइट हैकर उस चीज को डिस्क्लोज करता है, देन फेसबुक को पता चलेगा कि अरे ये सिक्योरिटी बग है हमारे इसमें। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे वाइट हैट हैकर्स हैं जो फेसबुक को रिपोर्ट किए हैं, और उनको इन मतलब 20 to 25 lakhs इवन उनको रिवॉर्ड मिला है। ऐसे क्रिटिकल बग भी उन्होंने निकाले हैं। इवन ऐसे ऐसे बग फेसबुक में निकले हैं कि एनीवन कैन डिलीट एनी एल्बम फोटो, एनीवन कैन रीसेट एनी फेसबुक अकाउंट पासवर्ड। सो ऐसे ऐसे बग व्हाइट हैट हैकर्स ने निकाले हैं फेसबुक में। सेक्सुअल फ्रीक्स, सो किसी को हैरेसमेंट करना और चैट करने के बाद में उसको डराना धमकाना कि मैं आपकी ये चैट पब्लिक कर दूंगा, आपके फ्रेंड्स पे पोस्ट कर दूंगा, आपके फ्रेंड्स मेरे फेसबुक अकाउंट में ऐड हैं फ्रेंड लिस्ट में, मैं सबको आपकी चैट जो है वो पोस्ट कर दूंगा। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती हैं। मेंटली ड्रैग्ड पीपल्स, सो जो साइको पर्सन होते हैं वो भी बहुत सारे, इवन मैंने अपने करियर में बहुत सारे देखे हैं जो किसी के अकाउंट को टेक ओवर करने करने के बाद में और पोस्टिंग करते रहते हैं। जब मैं उनसे किसी दूसरे अकाउंट से चैट करता हूँ, देन दे आर मोर लाइक यू नो दे डोंट अफ्रेड फ्रॉम द पुलिस और एनी लीगल सिस्टम, लाइक दे आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर माइट बी, और ऐसे किसी स्टेट से होते हैं जहाँ पे साइबर क्राइम, इवन साइबर क्राइम का किसी को पुलिस को या उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता है। तो दे आर फीलिंग मोर सेफ कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अगर हम जयपुर या अलवर या हमारे ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे पता हो पुलिस डिपार्टमेंट को साइबर क्राइम का इफेक्टिवली अच्छे से काम हो रहा है। बट अगर हम बात करें कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ऐसी जगह पे अगर आप कुछ किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर रहे हो और अगर वो बंदा जाता है वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में कि एफआईआर कर, इवन उनको नहीं पता होगा कि यार कैसे क्या क्या है, कैसे इसको रिजोल्व करना है। तो वहां पे ऐसी चीजें होती हैं। इवन आपके पास में जो भी कॉल्स आती हैं, मनी फ्रॉडिंग की जो कॉल आती हैं, वो सब भी वही लोग जो दूसरे स्टेट से करते हैं। उनको पता है कि ये बंदा दिल्ली में है, दिल्ली की पुलिस बिहार आ नहीं सकती इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो भी सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट हैक करने के लिए, या फिर उसने अकाउंट से 5,000 रुपए निकाले और 5,000 रुपए के लिए कोई पुलिस वहां से ट्रेवल करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आएगी। तो दूसरे स्टेट के पर्सन ये लोग होते हैं, और फेक बैंक अकाउंट्स वो लोग बनवा के रखते हैं। बहुत सारी चीजें फर्जी होती है, उनकी सारी चीजें फर्जी होती हैं। फर्जी सिम होती है, फर्जी मोबाइल होता है, और सारी चीजें फर्जी यूज करते हैं वो लोग। Types of cyber crimes: harassment via emails, defamation. We have talked about that. Cyberbullying, फेसबुक पे या ऐसे किसी को डराना धमकाना, लाइक दैट। ईमेल स्पूफिंग, कि किसी को फेक ईमेल बना के और किसी के ट्रांजेक्शन्स पे अपना ट्रांजेक्शन्स बीच में डालना कि ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पे डाल दो। ऐसा हो चुका है मेरे फ्रेंड्स सर्किल में। साइबर पोर्नोग्राफी, कि किसी के वीडियोस या किसी के अकाउंट को हैक करके वहां से वीडियोस चुरा के और फिर उसको डराना धमकाना, लाइक दैट। सो फेसबुक से फोटो लेकर बनाता था अश्लील, फिर धमकी देकर करता था ब्लैकमेल। सो इस टाइप की चीजें, ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। रियल लाइफ में भी ऐसे केसेस मेरे पास में आए हैं कि वो बंदे क्या करते हैं कि लड़की की आईडी बना के और लड़की के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे फ्रेंड लिस्ट में। उसके बाद में उसकी फ्रेंड बनेंगे कि ठीक है, उससे बात करेंगे 10-15 दिन। उसके बाद में उससे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि आई वांट टू चैट सम प्राइवेट, और इस टाइप की कुछ चीजें। कुछ ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड। देन सामने वाला ठीक है, नॉर्मल एक नॉर्मल माइंड में वो यस और नो ऐसा कुछ लिख देता है। देन फिर वो उसको धमकी देते हैं कि अब मैं इसको स्क्रीनशॉट में अपने टाइमलाइन पे मैं शेयर करूंगा, तुम्हारे फ्रेंड्स में शेयर कर दूंगा। और बहुत सारी चीजें, या बहुत सारे सुसाइड केसेस, या बहुत सारे डिस डिस्क्लोज भी नहीं हो पाते हैं न्यूज में कि ये इस वजह से हुआ है।
Chennai engineer arrested for illegally sharing of an obscene picture of a girl child. सो इस टाइप के जो साइबर क्राइम केसेस है जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये अभी जनरल लाइफ में लोगों के हो रहे हैं, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। लेकिन जब किसी के साथ में ऐसा होता है, देन उसको लगता है कि यार मुझे अब अपनी पूरी फैमिली में इसको लोगों को अवेयर करना है कि ऐसा कोई ना करे। आई विल टॉक अबाउट कि व्हाट हैपेंड विद माय कजिन इन मनी फ्रॉड। मेरी कजिन के पास में कॉल आया कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम government, or we would like to deposit some amount in your account for लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन की वजह से हम गवर्नमेंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ऑल राइट। देन उसने पूछा कि आप गूगल पे यूज करते हैं? देन मेरे कजन ने बोला कि हाँ मैं यूज करता हूँ। ओके। देन उसने बोला कि ठीक है, आप एक्चुअली वो आपको पहले ही टारगेट कर चुके होते हैं। अगर मुझे आपका मोबाइल नंबर पता है कि हाँ ये गूगल पे पे ये बंदा है, मोबाइल नंबर डाल के देख लेते हैं कि हाँ ये गूगल पे पे है। देन वो क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज कि अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज देयर इज एनी पर्सन लाइक अनिल। ऑल राइट। सो आई विल कॉल टू द अनिल कि अनिल आप जो है, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो बोला ठीक है, आप गूगल पे यूज कर रहे हो? हाँ मैं यूज कर रहा हूँ। सो कैन यू प्लीज ओपन द गूगल पे। मैं अनिल को बोलता हूँ कि अनिल आप गूगल पे ओपन कीजिए। वो ओपन करेगा अनिल। मैं अनिल को बोलता हूँ कि आप इसमें एंटर करो अनिल @UBI। ओके। या फिर अनिल कुमार @UBI। ओके। सो वो उसमें डालता है अनिल कुमार @UBI, या कोई भी एक कैरेक्टर ऐड भी हो सकता है, अनिल के @UBI लाइक दैट। सो वो उसमें डालता है। देन वो उसमें डालेगा, उस नाम किसका आएगा? मेरा आएगा उसमें। क्योंकि वो अनिल @UBI उसका एड्रेस नहीं, वो मेरा एड्रेस है। मैंने क्या किया है, मेरे अकाउंट का जो यूबीआई लिंक होता है वो मैंने कस्टमाइज करके, और विक्टिम के नाम का मैंने यूपीआई एड्रेस मैंने उसको रख दिया है। अब सामने वाला बंदा लगेगा कि यार ये मेरा एड्रेस है, मेरा नाम है, और मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। ओके। वो उसको डाल देता है, नाम उसका आ रहा है, उसको यूं लगेगा कि हो सकता है वो मुझे भेज रहा है, इसलिए उसका नाम आएगा। और वो इतना फास्टली सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि ऐसे टाइम पे जब बंदे को लगता है किसी को कि यार 24-25 हजार या 30 हजार रुपए आ रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा नहीं सोचेगा यार। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का अभी कल किया है अनाउंसमेंट, और उसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा मनी फ्रॉड होने वाला है कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हम कर रहे हैं, 15,000 आपके अकाउंट में कर रहे हैं, दिस एंड दैट। एकदम करोड़ों में ट्रांजेक्शन टोटल होता है इसमें मनी फ्रॉड में। आप देख लो कि एक पर्सन से अगर ये लोग 50-60 थाउजेंड 1 लाख तक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इतना ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। इतना तो पीएम केयर फंड में पैसा भी नहीं आया होगा जितना मनी फ्रॉड में इन लोगों के पास जा रहा है। सो मेरे कजन ने क्या किया, उसमें डाला और उसने सब पे कर दिया, और उसके अकाउंट से सारा उसे ओटीपी वो आया। उसने कोड डाला गूगल पे का कोड डालने के बाद पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होने के बाद में पता चला कि ये सब हुआ। देन ही कॉल्ड टू मी। देन मैंने देखा, उसने मुझे पूछा कि यार पैसे वापस आ सकते हैं? देन आई कंप्लीटली डिनाइड। मैंने कहा ऐसा नहीं आ सकते हैं पैसे, क्योंकि आपने अपने पूरे होश में ये पैसे ट्रांसफर किए हैं। देन आई कॉल्ड टू द पर्सन। मैंने उस पर्सन को कॉल किया कि यार यू कॉल्ड मी, और ऐसे ऐसे आपकी मिस कॉल आई हुई थी। आई वाज जस्ट चेकिंग कि कौन है और किस टाइप की, ये कौन है ये बंदा। देन आई फाउंड कि दे वर फ्रॉम बिहार और ईस्ट यूपी, और उधर के थे वो लोग। देन मैंने उसको बोला कि आपने मेरे को मिस कॉल की हुई थी 2 दिन पहले। देन वो भी सेम चीज मेरे से करवा रहा था कि आप गूगल पे यूज करते हैं, एक्चुअली हम लॉकडाउन की वजह से आपको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, और इस टाइप की जो चीजें हैं। देन मैं ठीक है, मैं करता गया, और उसके बाद में फाइनली मैंने उससे पूछा, मन का ये लोग मन का मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मैं आपकी कंप्लेन आपकी हो चुकी है और एफआईआर हो चुकी है, मैं देख रहा था कि आप कौन हो, और ऐसे ऐसे वी विल कैच यू। देन ही वर 101% कॉन्फिडेंट। ही सेड टू मी कि आप में जितना आप मुझे पकड़ सकते हो तो आप मुझे पकड़ के दिखाओ। कितना कॉन्फिडेंस था उसमें। आई वॉज शॉक्ड कि आप जो कर सकते हो आप करके दिखा दो, और आप पकड़ सकते हो तो आप पकड़ के दिखा दो मुझे। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो सिम फेक यूज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट फेक यूज कर रहे हैं, मोबाइल फेक यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फेक। एंड उनके कांटेक्ट में जो आप पुलिस की बात कर सकते हो या कोई बैंक जो उनको फेक अकाउंट उनको जनरेट करके दे रहा है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। उनका काफी बड़ा नेटवर्क है। तो दैट इज नॉट ए लाइक स्मॉल सर्किल of these kind of peoples. So I want to ask from you questions till the time like uh, I will explain some more slides. So अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको अगर कोई डाउट्स हैं आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। Yes, so Manish, there are few questions. एक क्वेश्चन है अपने असरुद्दीन खान की तरफ से। असरुद्दीन खान को मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। असरुद्दीन खान जी चले गए हैं। Okay. आकांक्षा, डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी डॉक्टर आकांक्षा, आपका सवाल। डॉक्टर आकांक्षा, हमारी आवाज़ आपको आ रही होगी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे जा रहा हूँ। संतोष कुमार जी हैं, उनको एक सवाल है। जी संतोष कुमार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। किसी को जो सवाल हो वो अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करके हम आपको अनम्यूट करेंगे। ओके, आई थिंक वी कैन प्रोसीड अहेड। मनीष, ओके ओके। मनीष एक मिनट, मनीष विश्वकर्मा जी हैं, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार। नहीं, वो भी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप प्लीज अपना सवाल जो है बोले क्वेश्चन पेन में लिख दें एक बार, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो। मनु विश्वकर्मा, आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज बोल सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर कभी कभार हम अपने आधार नंबर को मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए भेज देते हैं सर, किसी को देते हैं सर, उस केस में हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है सर आधार नंबर से? हाँ, आधार नंबर मनीष, से जब आप अपना आधार कार्ड किसी को देते हो देन आपके पास ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। वो आपके आधार जी का जी कभी भी वो आपके आधार कार्ड का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ओटीपी आपके पास आएगा। और कोई भी ट्रांजैक्शन होता है आपके आधार कार्ड को कहीं भी जी हाँ यूज किया जाता है गवर्नमेंट में, या जैसे अगर आप बात करो कि राशन जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गॉट इट, गवर्नमेंट जो राशन जी वितरित कर रही है, अगर आपका आधार कार्ड अगर कोई वहां पे यूज कर रहा है तो आपके नंबर पे ओटीपी आता है। और इवन जी ये सामने वाली पार्टी ये वेरीफाई भी करती है कि लेट्स सपोज योर नेम इज व्हाट्स योर नेम। मनु विश्वकर्मा। ओके, सो मनु विश्वकर्मा का पहली बात तो ये है कि अगर आपका आधार कार्ड है, अगर कोई और कोई यूज कर रहा है तो वो नेम वेरीफाई होगा। और सबसे बड़ी बात है यस कि यस आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है अगर कहीं पे भी कोई भी आधार कार्ड यूज होगा आपका। जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, सो आधार कार्ड पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम आता है आजकल। भरत देव जी हैं, उनको एक सवाल है। जी भरत देव जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। भरत देव जी। ओके, वो पूछ नहीं पा रहे, मैं क्वेश्चन जवाब में पूछ लेता हूँ। इज ट्रू, एक क्वेश्चन है मिस्टर अमित कक्कर साहब, जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं और मेंटर हैं प्रोग्राम कमेटी के। इज ट्रू कॉलर सेफ
should we download it safely? How much safe is downloading various apps from Google Play? यस, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्लाइड। ये हमारी स्लाइड का पार्ट है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल्ड वे में इसके बारे में बात करूंगा। सो आपके ठीक है। सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। ये भरत देव जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी भरत जी, भरत जी सवाल पूछिए। उनका क्वेश्चन है, एथिकल हैकर कैन नॉट हैक देयर सर्वर। आप एक बार रिपीट करेंगे? सवाल पूरा नहीं है शायद ये, एथिकल हैकर कैन नॉट हैक देयर सर्वर। अच्छा, क्या एथिकल हैकर किसी हैकर के सर्वर को ट्रेस कर सकते हैं, शायद ये सवाल है। हाँ, वेबसाइट को मनीष आपकी आवाज कट गई होती है। मनीष आपकी आवाज कट गई, दोबारा। 1 सेकंड। हाँ, थोड़ी सी हेलो। हाँ जी जी मनीष। अगर कोई हैकर का वेबसाइट उसके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से कंट्री से या कौन सी आईएस से हमारा सर्वर है। अगर मनीष आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीष, तो आपका नेटवर्क वीक है साइड। अभी आ रही है? हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हेलो। हो रही है। हाँ ठीक है जी जी। हाँ, 1 सेकंड। देखिए। हेलो। जी 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 बताइए। हाँ हाँ, तो अगर कोई हैक कर जो अवेलेबल लोग्स होते हैं, जैसे आईपी एड्रेस, और अगर वो सामने वाला बंदा हैकर वीपीएन यूज नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो यूज कर रहा है, तो हम उसको डिटेक्ट, हमारे पास जो फर्जी लोकेशन आएगी, फेक लोकेशन आएगी, तो उसके बेसिस पे हमको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई लिंक, अगर मेरे पास में आईडी है, या जिससे कि जिस ईमेल आईडी से आपके पास मेल आया है, आईडी पे हम कोई लिंक भेजेंगे, ताकि हो सकता है वो बिना वीपीएन के वो उस पे क्लिक कर दे। ऑलराइट। सो वो सब चीजें हम उन सब तरीकों से हमको उसको, बट जो हमारे पास में लॉग्स आते हैं उसके बेसिस पे हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा टाइम पे कि ऐसे ऐसे वीपीएन चल रहे हैं मार्केट में, टोर ब्राउजर, टोर नेटवर्क, कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ओके जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, इस चीज का बहुत फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। मनीष आप और सवाल लेंगे या फिर सेशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ, मैं और कंटिन्यू करूंगा। कुछ स्लाइड्स और हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो पहले कंटिन्यू करें, सवाल बाद में लें, या पहले हाँ, सवाल लेना बाद चाहेंगे? में सवाल लेते हैं। ठीक है, डन। ठीक नहीं, पहले मैं, हाँ, बाद में सवाल लेते हैं। ठीक है, डन। पाकिस्तानी हैकरों की करतूत, नोएडा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हैक की। सो जब इस तरीके के जो केसेस हुए पाकिस्तान हैकरों, अब इनको कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान से हैं? जो आईपी एड्रेस इनके लॉग्स में जो एंटर हुई है, वो पाकिस्तान की आईपी आई। आईपी कैसे चेक करते हैं? आप सिंपली चेक कर सकते हो कि आईपी लुकअप, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप आईपी डाल के आप अपनी आईपी
किसी की भी आईपी चेक कर सकते हो। जैसे लेट सपोज कि ये IPv6 यहाँ पे मेरी आ रही है, IPv4 ये मिली है मुझे। तो आप इस वेबसाइट पे आके व्हाट इज माई IP address.com IP लुकअप, यहाँ पे आके किसी की भी आईपी, जैसे लेट्स आपके वेबसाइट में लेट सपोज ये आईपी लॉग हुई है, आप यहाँ उस आईपी को यहाँ पे डालो गेट आईपी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। न्यू दिल्ली और वोडाफोन, ये जो इंफॉर्मेशन आई है, तो इस तरीके से पता चलता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि लोकेशन क्या है आईपी का। 7 अरेस्टेड फॉर अकाउंट्स विद बैंकिंग एप्स। बैंकिंग ऐप के साथ में जो फोर्जरी होती है या किसी को सोशल इंजीनियरिंग से किसी को बेवकूफ बना के और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं, इस तरीके की चीजें। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट, कि अगर आप साइबर क्राइम केस करते हो, जैसे आपके साथ में लेट सपोज कि कोई साइबर बुलिंग कर रहा है या आपको आपको डिफेम कर रहा है कोई, या आपके अकाउंट से किसी ने पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं गलत तरीके से, या किसी ने आपके ATM से पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं ATM से अकाउंट से पैसे मेलिशियसली ट्रांसफर करने के, तो आप साइबर क्राइम केस जाके आप कर सकते हो। तो उसके ये कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम हैक करता है तो 3 इयर्स तक जेल हो सकती है, और ये कुछ जुर्माना भी है, फाइन भी है जो इस पे लगता है। रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर आप कोई चोरी किया हुआ फोन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी 3 साल की जेल हो सकती है। चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, कि अगर किसी कंप्यूटर रिसोर्स के साथ में आप कुछ कोई डिवाइस में कुछ ऐसा कुछ डाल के किसी को दे देते हो, है ना, या मैं लेट सपोज आपको एक पेन ड्राइव दे रहा हूँ, आप उसको लगा रहे हो और पेन ड्राइव से आपका सिस्टम हैक हो गया है, तो उसमें भी 3 साल की जेल है। पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर्स, कि अगर आपकी प्राइवेट फोटो लेट सपोज एनी हाउ आई गॉट एंड मैं उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें भी 3 साल की जेल है और 2 लाख तक जुर्माना है। पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, अगर कुछ प्राइवेट फोटो कोई कर रहा है तो उसमें 7 इयर्स की जेल है। पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्री डेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, इसमें 5 साल की सजा है अगर कोई चाइल्ड पोर्न से रिलेटेड चीजें ऑनलाइन साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड 5 साल की जेल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 3 साल की जो यहाँ पे है साइबर क्राइम में इंडिया में अभी तक ऑलमोस्ट जितने भी केसेस होते हैं उसमें जेल वेल अभी तक साइबर क्राइम में नहीं हुई है किसी की। और केसेस जो हो रहे हैं वो आप मिलियंस में केसेस हो रहे हैं अभी अभी राइट राइट नाउ, अगर आप देखो तो मिलियंस में केसेस हैं साइबर क्राइम के। और अरेस्ट इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं है, और या फिर है भी तो वो लोग VPN यूज कर रहे हैं या प्राइवेट अपने आप को उसमें या फिर जैसे दिल्ली के हैं या बिहार के और यूपी साइड के हैं वो कर रहे हैं। पुलिस वहां तक नहीं जाती है 10-15 हज़ार के लिए, उनको पुलिस को भी कुछ अ, अलग से चीजें उनको चाहिए होती हैं कि वो छोटे से अमाउंट के लिए नहीं करते हैं ट्राई। ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है जहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहने की ज़रूरत है।
अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ। फेसबुक पे आपको सिक्योर रहने की जरूरत कैसे है? जब भी आप फेसबुक अगर आप चलाते हो तो जो डोमेन है FACEBWOK.com, ये आपको स्पेशली देख लेना है कि आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जब आप फेसबुक चलाते हो, किसी लिंक पे क्लिक करते हो, फेसबुक ओपन हो रहा है, तो आप ये देख लो कि ये FACE, इसकी जो स्पेलिंग है वो facebook.com ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि FECA या FACEEB.OK.co.in, है ना। आपको लगेगा वो डिट्टो फेसबुक के जैसा ही, लेकिन आपको उस पे कहीं पे भी आपको क्रेडेंशियल नहीं डालना है। वो फिशिंग हो जाती है। फिशिंग आपके सामने सेम फेसबुक के जैसा ही कोई पेज होता है जिस पे आपको क्रेडेंशियल, आपको अगर आप डाल देते हो तो वो हैकर के पास में आईडी पासवर्ड चले जाते हैं। और ऐसा जनरल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता है कि उनके आईडी पासवर्ड चोरी हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग, मैं आपको इसी में बता देता हूँ, टाइम कम है, कि अगर आपने अपना मोबाइल नंबर फेसबुक का पासवर्ड सेट किया हुआ है तो आप उसको तुरंत बदल दें। और अगर आपने अपना मोबाइल नंबर @123 मनीष @123, जैसे मेरा नाम मनीष है तो मनीष @123, मनीष@2020, मनीष@98765432 है ना, मनीष #123, इस तरीके के अगर आप पासवर्ड यूज कर रहे हो तो आप तुरंत अपने पासवर्ड बदल लें। क्योंकि हैकर जो टारगेट करते हैं किसी को, वो सबसे पहले जो टॉप 100 पासवर्ड उस पर्सन से रिलेटेड हैं वो ट्राई आउट करते हैं। ओके, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 14 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, और कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स, ये आपको यूज करके अपना पासवर्ड रखना है। और एवरी 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर आप अपना पासवर्ड चेंज करते रहो। और कभी भी आप अपना जीमेल का, फेसबुक का, बैंक अकाउंट्स का या अपने ऑफिशियल अकाउंट्स का पासवर्ड कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। वो आप थोड़ा सा वैरायटी में रख सकते हो। जैसे मेरा जो, जैसे लेट सपोज फेसबुक अकाउंट अगर आप रख रहे हो तो लास्ट में जैसे कोई डिजिट आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप वेरिएंस रख सकते हो, जैसे लास्ट में 20 है। देन दूसरे जीमेल के में आप रख सकते हो कि 31 या 85, या कोई भी आप 3 डिजिट का नंबर भी ले सकते हो 3 डिजिट में, ताकि अगर किसी को एक पासवर्ड पता चले तो वो दूसरा पासवर्ड गैस ना कर पाए इजीली। या आप उसमें कोई नेम ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे आपके पास आती है तो केवल आप उन्हीं पर्सन्स को ऐड कीजिए जिनको आप जानते हैं। अगर आप अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आप ये ना समझो कि ठीक है ये जो है मेरे नेटवर्क का हो सकता है। हो सकता है कि वो कोई फेक आईडी हो, वो आपको फूल बना के और आपसे कुछ चीजें करवाना चाह रहा हो, या सोशल इंजीनियरिंग करके आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो। तो जिन लोगों को आप पर्सनली जानते हो आप उनको ही अपने अकाउंट में ऐड कीजिए। अंडरस्टैंडिंग योर प्राइवेसी सेटिंग, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि फेसबुक के प्राइवेसी सेटिंग भी है, जिसको हम अपने आप को थोड़ा सा प्राइवेसी में आप अपने आप को रख सकते हो कि आपकी फ्रेंड लिस्ट पब्लिकली किसी को ना दिखे। कोई भी आपके फ्रेंड लिस्ट में जो नहीं है, आपके फ्रेंड्स ना देख सके। बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स ओपन रखते हैं कि कोई भी जाके ये देख सकता है कि इसके अकाउंट में कौन कौन ऐड है ना। और ये सब जो जासूसी करते हैं, वो सब प्राइवेसी अगर आप लगा देते हो तो वो नहीं हो सकती है। तो प्राइवेसी में जाके और आप इसको एक बार व्यू जरूर करें। सेफ बुक, दिस काइंड ऑफ लाइक हाउ कैन यू सिक्योर एट फेसबुक। थिंक बिफोर यू पोस्ट। अगर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसी इलीगल पोस्ट या ऐसी कुछ पोस्ट आप फेसबुक पे ना डालो, क्योंकि फेसबुक पे एक सोशल नेटवर्किंग वो है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपकी पोस्ट, अगर आप कुछ इलीगल पोस्ट डाल रहे हो तो वो लीगल सिस्टम पे भी अप्रोच हो सकती है और आप अरेस्ट हो सकते हो। तो फेसबुक पे कुछ भी ऐसी चीज एब्यूजिव चीजें या ऐसी कुछ चीजें नहीं डालनी चाहिए। बी काइंड टू अदर्स, क्या किसी को भी चीजें हर्ट ना हो कि वो आपसे रिवेंज लेने के लिए या आपकी पर्सनल चीजों को हर्ट प्रॉब्लम क्रिएट करे। पासवर्ड आपका कभी भी किसी से शेयर नहीं होना चाहिए। ओनली कनेक्ट विद फ्रेंड्स, पब्लिकली आप किसी को भी ऐड ना करो। डोंट बी हर्टफुल टुवर्ड्स अदर्स, किसी को भी फेसबुक पे गाली गलौज या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ताकि चीजें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो हम दूसरी चीज पे आते हैं जो कि ज्यादा जरूरी है, अभी टाइम कम है। एक होता है एटीएम स्कीमिंग। तो एटीएम से बहुत बहुत बार आपने देखा होगा कि एटीएम, आप घर पे बैठे होते हो और आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, एटीएम आपके पर्स में रखा होता है। क्योंकि
ये जो आप देख रहे हो ओरिजिनल कार्ड रिसेप्टेकल, जो आप कार्ड इंसर्ट करते हो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का ये जो डिवाइस लगा है, ये जो एटीएम इंसर्ट करने का, तो एटीएम में क्या होता है, जहाँ पे कैमरा और ये सब कैमरा होता है, उसमें भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं कि कैमरे को डिसेबल करके और वो सब एक्टिविटी करने का। तो वहां पे जाके और इस डिवाइस के आगे इसके ऊपर एक और सेम चीज वो इसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं, जो कि क्लोनिंग करता है आपके एटीएम को। वो एटीएम के आसपास हैकर्स बैठ जाते हैं, और जैसे कोई बंदा जाता वो इसमें कार्ड इंसर्ट करता है, और ये उसको एटीएम को क्लोन कर लेता है, और आपका एटीएम पैसे भी आपके निकल जाएंगे, लेकिन आपका एटीएम किसके अंदर एक चिप होती है जो कि आपके एटीएम की जो ब्लैक स्ट्रिप होती है वो उसको इसमें क्लोन कर लेता है। और हैकर्स क्या करते हैं, इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और उसी पैटर्न में वो अपनी ब्लैक स्ट्रिप को जनरेट कर लेते हैं, और फिर एटीएम जनरेट करके वो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं। अब रही बात की पिन कैसे पता होता है, कि उनको पिन कैसे पता चलता है, ये जो नंबर, ये जो पैड है, नंबर पैड है, इसके ऊपर वो एक और नंबर पैड डाल देते हैं। ऑलराइट, तो जैसे 2438 लेट सपोज आपका पिन है, तो जैसे 2438 आप पिन डालते हो, तो वो ओरिजिनल बटन भी प्रेस होंगे, और वो जो नकली जो पैड है, उनकी नंबर पैड है, उसमें वो नंबर सेव हो जाते हैं एट द टाइम, पर्टिकुलर टाइम, उस पे इस टाइम पे। तो उनको पता होता है कि इस टाइम पे एक कार्ड इंसर्ट हुआ है और उसी टाइम पे ये पिन दबाए, तो वो उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसा मेथड है जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो कहीं भी आप एटीएम में जाते हो तो पहले आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके आप देख लो, ये जो ग्रीन कलर का है, कि आप थोड़ा सा खींच के देख सकते हो कि ये बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके हाथ में आ जाएगा, अगर ये कोई ऐसा कुछ फ्रॉड होगा तो वो थोड़ा सा खींचने से आपके हाथ में आ जाएगा। और नंबर पैड को आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके कि ये ऐसा कुछ फेक तो नहीं लगी हुई है। ओके, अब आपको फोन को कैसे सिक्योर करना है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि फोन को कैसे सिक्योर करना है। तो डाउन अगर आपका विंडोज फोन है तो डाउनलोड फ्रॉम विंडोज स्टोर, आप केवल विंडोज स्टोर से ही ऐप आपको इंस्टॉल करने हैं। एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले, तो अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो केवल गूगल प्ले स्टोर से ही आपको एप्लीकेशन जो एप्स हैं गूगल प्ले से ही आपको डाउनलोड करने हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ऐप ट्रू कॉलर का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर किसी फर्जी वेबसाइट पे या ऐसी किसी भी वेबसाइट पे अगर कोई ऐप इंस्टॉल करवा रहा है तो वहां से आप एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का ऐप हो। अगर उनका ऐप सिक्योर है देन वो उसको गूगल प्ले पे डालेंगे, ना कि किसी वेब एप्लीकेशन पे या किसी वेबसाइट पे। लॉक योर स्क्रीन, अपने फोन पे हमेशा हार्ड पासवर्ड या जो पासकोड होता है वो आप लगा के रखोगे। अगर आपका फोन कभी लोस्ट भी होता है या खो जाता है, देन उसमें वो उसको इजीली ब्रेक ना कर सकें। अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर, तो ऐप स्टोर पे जो भी एप्लीकेशंस हैं उन्हीं को आप इंस्टॉल करो। तो अगर एनी हाउ अगर आपके कोई आपको डॉट एपीके भेजता है या कहीं से भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, तो जब आप क्लिक करते हो किसी भी डॉट एपीके फाइल पे इंस्टॉल करने के लिए, तो आपके पास में परमिशंस आती हैं कि रिकॉर्ड ऑडियो, टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस। आप अब आप ये देख सकते हो, जैसे किसी ने पूछा था कि ट्रू कॉलर ऐप जो है वो सेफ है कि नहीं है। अगर इसमें ये आ रहा है कि बहुत सारी परमिशंस ट्रू कॉलर ऐप अगर आपसे मांग रहा है, देन आप उसको इंस्टॉल मत करो। क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन आपके आपके फोन की सारी परमिशन ले रहा है, दैट्स मीन कि आपका पूरा फोन उस कंपनी के पास में है, उस पर्टिकुलर जो भी उस ऐप को मैनेज कर रहा है उनके पास में आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं जो आप अपने फोन में खींचते हो। और इवन आप जो आप अपने फोन के पास में जो बातें कर रहे हो, इवन आप कॉल नहीं कर रहे हो बट आपके फोन को पास में रख के किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, इवन वो भी सामने वाली पार्टी के पास जा रहा है। और आप जब कॉल करते हो कॉल रिकॉर्डिंग भी जा रही है, आपके पास एसएमएस आ रहे हैं वो एसएमएस भी उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपके फोन के एसएमएस रीड करने की और ये परमिशन आपने दे रखी है यहाँ पे। तो आपके फोन को पूरा कंट्रोल वो लोग वहां से कर लेते हैं। तो कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, इवन वो किसी को ओटीपी भी नहीं बताते हैं कि ओटीपी आया, पर मेरे पास तो कोई कॉल ही नहीं आया। उनको कैसे पता चला कि मेरे ओटीपी, वो आपके फोन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जैसे ही आपके फोन पे ओटीपी आता है वो उनके उनके सर्वर पे भी वो ओटीपी चला जाता है। उनको इजीली पता हो जाता है बिना आपके कॉल किए कि हाँ इसका क्या ओटीपी है, और वो ओटीपी उसमें डाल लेते हैं और वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
टॉप 10 टिप्स टू कीप यू सेफ ऑनलाइन, चेक योर यूआरएल। किसी भी वेबसाइट पे आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, उसका यूआरएल आप एक बार चेक कर लो कि ये ओरिजिनल यूआरएल ही है कि नहीं है। आउट स्मार्ट फिशिंग अटेम्प्ट्स, कि जो फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि ये इट्स कंप्लीटली लुकिंग लाइक फेसबुक, कंप्लीटली लुकिंग लाइक जीमेल। तो आप यूआरएल आप एक बार जरूर उसमें चेक कर लें। ऑलवेज चेक द सेंडर्स ईमेल एड्रेस, अगर आपको कोई ईमेल आ रहा है तो उसका ईमेल एड्रेस आप चेक करो कि जिसने आपको ईमेल भेजा है कि वो ऑथेंटिक पर्सन है, या जैसे तुम्हारे फ्रेंड के सेम नेम से या उससे मिलते जुलते ईमेल आईडी से आप कंफर्म कर सकते हो यार तुमने मेल किया है मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए, क्या ये तुमने भेजा है। तो इस तरीके से लर्न टू स्पॉट टेल साइंस ऑफ ए सिक्योर साइट। जो HTTPS साइन होता है वो आप एक बार चेक कर ले कि सिक्योर साइट है। हालांकि दिस इज नॉट द परफेक्ट वे कि HTTPS अगर साइट है तो वो सेफ होगी, तो आई विल नॉट कंसिडर दिस थिंग। बट ये जो सेफ होता है, ये सेफ का मतलब ये नहीं होता है कि इस पे कोई मनी फ्रॉड नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये है कि आपके नेटवर्क में कुछ भी चीजें कोई हैक नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप अपने वाईफाई कनेक्ट करके उस वेबसाइट पे कुछ कर रहे हो, अपनी बैंक की वेबसाइट HTTPS होती है, तो कुछ भी कर रहे हो तो आपके नेटवर्क में कोई दूसरा बंदा कनेक्ट होता है तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, आपकी चीजें पढ़ नहीं पाएगा। ये सिर्फ HTTPS उस चीज के लिए होता है, ना कि भाई उससे उस वेबसाइट पे कोई मनी फ्रॉड नहीं होगा। तो ये समझना गलत है। शॉप शॉप सेफली विद रेपुटेबल ऑनलाइन रिटेलर्स एंड मार्केट प्लेस। तो जो रेपुटेबल जो वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, टाटा क्लिक हो गया, और इस टाइप की जो साइट्स हैं, केवल उन्हीं पे आपको शॉपिंग करनी है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको नेट पे उसको चेक कर लेना है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। और आपको नहीं पता चलता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है तो आप उस पर शॉपिंग ना करें। यूज ए सेफ एंड ट्रस्टेड पेमेंट मेथड व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन। तो ये शॉपिंग ऑनलाइन करने के टाइम पे आपको बहुत ही सेफ मेथड यूज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी फर्जी जगह पे आप अपना बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डाल रहे हो शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत ही सेफ तरीके से आपको करना है। आपको यूआरएल चेक करना है, वेबसाइट चेक करनी है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है HTTPS। आप एक बार चेक कर लें कि कंटेंट सही है, वेबसाइट का ओरिजिनल कंटेंट है। यूज प्राइवेसी सेटिंग एंड शेयरिंग कंट्रोल्स। अगर आप सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स यूज कर रहे हैं तो आप प्राइवेसी सेटिंग्स पे आप जाके और पूरा प्राइवेसी सेटिंग्स को अच्छे से पढ़ें कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए हैं। प्रोटेक्टिंग योर डिवाइसेस, आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस आप डाल के रखें। कोई भी मेलवेयर या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो बाहर या किसी अटैकर के पास में कोई चीजें भेज रहा है तो वो आपका जो डिवाइस है प्रोटेक्ट हो जाएगा। केवल अगर आप ये मान रहे हो कि केवल एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद आप 100% सिक्योर हो, तो ये समझना गलत है। यूज ए लॉन्ग यूनिक पासवर्ड, आपको पासवर्ड यूनिक रखना है, लॉन्ग पासवर्ड रखना है। थिंक बिफोर यू रिवील। सो अगर कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल है, ऑलराइट, या कोई ऐसी कोई चीज है तो उससे पहले या ट्रांजेक्शन करने से पहले आप देख लो, सोच लो कि हाँ ये बहुत जरूरी है और बहुत सही है। इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट, उसके बाद ही आप वो चीज करें। थैंक यू। और अगर अब आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। राइट, मैं अभिषेक गुलाटी हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मिस्टर अभिषेक गुलाटी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन नाउ। राजीव शर्मा जी, राजीव शर्मा जी। योगेश कुमार राज जी एक सवाल पूछना चाहते हैं जी। योगेश हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताइए। अभिषेक हेलो जी बताइए। जी अभिषेक जी बताइए। सर, माय क्वेश्चन इज, सर एटीएम स्कैम्स में जैसे हमने सुना है कि हम लोग विदाउट स्वैपिंग द एटीएम हमारे डेबिट हो जाते हैं, तो उस बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए हम लोग को। विदाउट स्वैपिंग मतलब आपने कहीं पे भी ट्रांजेक्शन अमाउंट, नहीं किया है? हाँ जी, और अमाउंट डेबिट हो गया हमारे क्रेडिट कार्ड से, तो और जो ओके, ये एक्चुअल में मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ था कि उसने एटीएम कार्ड स्वाइप नहीं किया था, बट दिल्ली के ठीक है, एटीएम से ठीक है। क्रेडिट जो अमाउंट डेबिट का उनके मोबाइल फोन पे
टेक्स्ट मैसेज आया था। ठीक है, तो देखो इस मैं बारे आपको में सर बताता क्या हूँ, प्रॉब्लम मैं आपको जी। मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने फ्रेंड ने लास्ट ट्रांजेक्शन कब किया था उस एटीएम से? ट्रांजैक्शन तो सर काफी टाइम से उन्होंने लोकल में भी नहीं किया था। नहीं, मुझे टाइम बताओ आप, लास्ट ट्रांजेक्शन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना? हाँ जी, अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स है वो। 3 मंथ्स अगो, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये तुरंत ट्रांजेक्शन्स, अगर कोई ट्रांजेक्शन जैसे ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही हुआ होगा, स्वैपिंग वाला जो मैं बता रहा था, कि जैसे आपने स्वैप यस किया कहीं पे, आपको नहीं पता कि आपका क्लोन जी। हो चुका है, यू आर 100% श्योर कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ऑलराइट। तो आप घर पे आ जाते हो, यस टाइम सर। बीतता जाता है और वो 1 बाय 1 करके लोगों के अकाउंट से कर रहे हैं। हो सकता है आपका नंबर बहुत लेट आया हो और आपको याद नहीं है कि आपने लास्ट टाइम कब स्वाइप किया था, ऑलराइट। इवन लोगों को ओके। याद भी नहीं रह पाता है कि यार मैंने कब किसी एटीएम में बैलेंस चेक किया था, कब नहीं किया था। और ठीक है, अगर ये आपने नहीं किया है, ठीक है, आपने स्वैपिंग से आपका जो ये जो सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है स्वैपिंग से नहीं हुई है, देन आपने कहीं पे शॉपिंग की है किसी वेबसाइट से, या उस वेबसाइट पे आपके क्रेडेंशियल्स डले हुए हैं एटीएम के, वो उस वेबसाइट से डेटा लीक हुआ है। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग की है, फ्लिपकार्ट पे मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाले हैं, राइट, अपने क्रेडिट कार्ड यस की चीजें डाली हैं। फ्लिपकार्ट वो चीजें सेव रखता है, आपको ऐप पे तुरंत बताता है कि आपको ये एटीएम यूज करना है, ये क्रेडिट कार्ड यूज करना है, राइट। तो हो सकता है कि वहां से भी डेटा चोरी हुआ हो और आपके क्रेडिट कार्ड चीजें या डेबिट कार्ड जो हैं वो वहां से चोरी हुए हैं, और इवन फ्लिपकार्ट को भी नहीं पता हो कि वहां से डेटा चोरी हुआ है। सो द थिंग इज कि ये चीजें कहीं से भी लीक हो सकती हैं, तो नो वन इज 100% सिक्योर। सर, व्हाट इज द सजेशन टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स? यार देखो, सजेशन तो यही है कि आपको जहां तक है जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, या जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिक हैं बट वो नई हैं, है ना, यस सर। ऑथेंटिक हैं बट वो नई नई मार्केट में आई हैं। और इवन उन लोगों ने सिक्योरिटी टेस्टिंग भी नहीं करवा के रखते हैं वो लोग अपनी वेबसाइट की, क्योंकि वो मार्केट में नए हैं और वो इतना इन्वेस्टमेंट यस। नहीं कर सकते सिक्योरिटी पे। तो अगर आप उनके उस पे यूज कर रहे हो, और नई नई, जैसे स्नैपडील जो शुरू में आया था तो बहुत सिक्योर था यस। स्नैपडील, उसमें कम सिक्योर था, तो उस पे चीजें हो रही थी ऐसी इस टाइप की। जब धीरे धीरे वो कमाना स्टार्ट किए तो सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, उन्हीं को आप अपनी लाइफ में जो है यूज करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 2015 में हमने उनके सर्वर को पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लिया था। इवन जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे ओके। प्रीवियस रिजल्ट्स, और वो सब सारी चीजें हम देख पा रहे थे, इवन एडिट भी कर पा रहे थे। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी ओके और सर। ये ओके। जितनी भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो सब एक ही सर्वर पे होस्टेड थी। तो अगर ओके सर। आपका डेटा लीक हो रहा है ना, वहां से भी मैं आपका चीजें, आपकी जो डिटेल से चोरी कर सकता हूँ। आपके मोबाइल नंबर और जो भी आपने वहां पे रजिस्टर कर रखे, सारी चीजें चोरी हो गई। इस तरीके से जो डेटा थेफ्ट के अंदर ये चीजें आती हैं। ओके। ओके सर। ओके। ओके। थैंक यू सर। राजीव शर्मा जी। योगेश कुमार राज जी। हेलो। जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग मनीष। मनीष जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव हमें नॉलेज दी रिगार्डिंग सिक्योरिटी। मेरा गुड क्वेश्चन इवनिंग। आपके लिए यह है कि राइट नाउ जितने भी हम आजकल क्रेडिट कार्ड्स या एटीएम कार्ड्स या हम ऑनलाइन पे जो भी नेट बैंकिंग करते हैं, तो उनकी जो पासवर्ड के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि क्या तरीका है कि हम सभी के पासवर्ड्स क्या है कि हम अलग अलग अगर बनाते हैं तो उनको याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जनरली एक कॉमन थिंग होती है कि जनरली जैसे मेरे पास 4 से 5 बैंक के एटीएम है, तो मैं सभी का पिन एक रखता हूं। तो क्या आइडियल वे क्या है कि मैं किस तरह से इसके पासवर्ड्स को बनाना चाहिए? अगर अलग अलग बनाते हैं तो उनको याद करने का क्या तरीका है, या उन्हें कहीं हमें डायरी में मेंशन करना चाहिए? क्या आइडियल वे है, इसके बारे में थोड़ा सा आप
प्लीज हमें बताएं। देखिए, डायरी में मेंशन कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि डायरी में मेंशन आप करते हो, घर पे कोई भी गेस्ट आता है या कोई भी आपकी डायरी इधर से उधर हो जाती है, आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स आते हैं, देख लेते हैं, वो चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के लाइफ में बहुत सारी जो प्राइवेट चीजें वो प्राइवेट नहीं रह पाती हैं। तो वो सब चीजें ना करें। और दूसरी बात ये है कि उसको याद कैसे रखें। तो याद रखने हाँ। के लिए आप कुछ ट्रिक आप यूज करें, कि जैसे आपके पास में लेट सपोज इंडसइंड का बैंक का क्रेडिट कार्ड है, राइट? तो पासवर्ड जो आप सेम रख रहे हो, वो सेम आप 90% सेम रख सकते हो, है ना? और अगर जैसे इंडसइंड बैंक का है तो आप लास्ट में कुछ यूज कर सकते हो, IND1 या IND#, उस पासवर्ड के लास्ट में IND@, है ना? IND@8, जैसे अभी 2020 चल रहा है, IND#20। तो इस तरह, जैसे आपके पास यस बैंक का भी है तो yes@20, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप याद याद रखो, अगर आप इन चीजों को आप रियल में ही सिक्योर करना चाह रहे हो। क्योंकि ऐसा डिजिटल वे में भी हम आज कोई भी वेबसाइट या किसी भी लेते हैं आपको जहाँ पे पता हम है, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें एक पासवर्ड का आप ऑप्शन होता है, तो हमें हर जगह पासवर्ड बनाने पड़ते हैं। तो मतलब पासवर्ड्स बहुत सारे हो गए, कई बार ये होता है कि हम इसे यूज करने वाले लेते हैं और हमें याद नहीं होता पासवर्ड। आप दो पासवर्ड रखें। बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए आप अपना बहुत ही सिक्योर पासवर्ड रखें, और एक वो पासवर्ड रखें कि जो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जैसे अगर आप कहीं पे कोई कहीं पे रजिस्टर कर रहे हो, है ना? जैसे लेट सपोज अपना ये है शादी.com, है ना? तो शादी.com पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर रहे हो, तो हालांकि वहां पे भी सिक्योर पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आता है। तो उसमें आपको ठीक है, वो आपके पास में फाइनेंशियल फ्रॉड या ऐसा कुछ मनी ट्रांसफर जैसा कुछ नहीं होगा। वो वेबसाइट की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा कुछ इन केस अगर कुछ होता है तो, है ना? तो उस केस में आप, ओके। वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट विजिट कर रहे हो, कहाँ पे साइन अप कर रहे हो। तो आप थोड़ा मोड़ा एकदम नॉर्मल पासवर्ड यूज कर सकते हो वहां पे। ओके। और बट मोबाइल नंबर या बहुत ही ज्यादा सिंपल कभी पासवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं एक दिन बैठा था कि मैं सोच रहा था कि यार एक बार मैं ट्राई करता हूँ, जो मेरे होम टाउन में जो नॉर्मल बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो मतलब जो पुराने जो लास्ट जनरेशन के जो लोग हैं, इवन अगर मैं बात करूं कि जो अच्छी पोजीशन पे हैं, जो कंपनीज में, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। और इवन मैंने ट्राई किया एक बार, एक बंदा था हमारे नेटवर्क में, तो उसने अपनी कंपनी के नाम के आगे @123 उसने अपना फेसबुक का पासवर्ड रखा हुआ है, और अभी तक रखा हुआ है। ऑब्वियसली सेम मेरा भी अभी यही तक है। रखा जैसे हुआ है, मैं बता रहा हूँ। IRECT तो की जो वेबसाइट है, वो मेरा भी एक कॉमन पासवर्ड है, जो मेरे कलीग थे जिस ऑफिस में इनिशियली मैं वर्क करता था। अभी वो मेरे उस पासवर्ड से मेरा उस वेबसाइट को वो यूज करते हैं। मतलब कई बार होता है, हाँ, तो वो चेंज नहीं किया, हालांकि वो नॉन है, बट कॉमन है। तो दैट्स व्हाई वो एक बड़ा क्रूशियल होता है कि वो इतने सारे पासवर्ड को आप कैसे मेंटेन करें। लोग लोग गैस कर लेते हैं। जैसे मेरे फादर का एक बार अकाउंट जो है वो खुल नहीं रहा, या उसमें कोई फॉरेनर था, वो अपनी फोटो डाल रहा है। देन हम्म मैंने देखा यार ये कैसे हुआ, फिर मैंने उसका पासवर्ड रिसेट किया। फिर पता हम्म चला कि मेरे फादर ने अपना मोबाइल नंबर उसमें रखा हुआ है पासवर्ड। फिर मैंने उसका पासवर्ड ओके। चेंज किया। फिर थोड़े दिन बाद एक और सेम केस आया, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया, तो मैंने उससे पूछा, उसके अंकल से, मैंने कहा मोबाइल नंबर रखा हुआ था? बोला हाँ, मोबाइल नंबर पासवर्ड था। तो वो मोबाइल नंबर क्या है, कई लोग पब्लिकली अपने फेसबुक पे डाले होते हैं। तो वो जो फेसबुक का जो यूजर आईडी होता है ना, URL में 100023 इस टाइप का, जो लंबा सा एक URL में एक आईडी होती है, उस आईडी से यूजर नेम में डाल के और पासवर्ड मोबाइल नंबर रख के वो अकाउंट खुल जाता है फेसबुक का। अगर आप अपने फेसबुक की यूजर आईडी, आप वो नंबर आप अपने यूजर नेम में डाल के और अपना पासवर्ड डालोगे, अकाउंट खुल जाएगा। तो उसमें ईमेल की भी जरूरत नहीं होती है फेसबुक में अकाउंट लॉगिन करने के लिए। ठीक है। एक सवाल राजीव शर्मा जी की तरफ से है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग वेबिनार देख रहे हैं, आजकल बड़े लोग वेबिनार खूब देख रहे हैं, तो ये जो वेबिनार देखने के बाद हम कैमरा ऑन रखते हैं, अपना माइक ऑन रखते हैं, तो इस बीच में क्या कोई अपना ईमेल अकाउंट, यूजर आईडी, पासवर्ड डालकर अपन ओपन कर सकता है? क्या इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है इस बीच में जब हमारा कैमरा और माइक सब ओपन है? ये जूम में हुआ है ऐसा। जो अभी रिसेंटली एक हैकिंग एक्टिविटी हुई है। जूम एक सॉफ्टवेयर है, जो जूम से जो ऑनलाइन क्लासेज और मीटिंग्स होती हैं जूम पे। तो जूम में एक ये बग निकला है कि किसी भी कोई भी मीटिंग है, तो उसमें कोई भी बंदा उसमें घुस सकता है।
और इवन उसके सिस्टम को भी इन्फेक्टेड कर सकता है वो। तो ये सिक्योरिटी बग अभी जूम में निकला है, तो उस पे काम चल रहा है, जूम वाले जो हैं उस तो पे सिक्योर करने में। मनीष, तो क्या ये जूम एप्लीकेशन, जूम वेबिनार यूज करना चाहिए, परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि नहीं, बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरीज, कुछ सजेशंस उसमें मतलब रिलीज किए हैं कि आपको उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जूम सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। वो आप क्या गूगल पे आप डाल के देख सकते हो, गूगल पे आप डाल के देख सकते हो, MHA जूम एडवाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, is hacking as a career in future times a great career option? And I'm trying to planning the same. नो डाउट आप हैकिंग पे, हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप से कर रहे हो, जैसे मैं अभी वेबसाइट सिक्योर करने का काम कर रहा हूँ, नेटवर्क सिक्योर जो है, उनके जो प्रोजेक्ट्स पे जो काम हो रहा है उन प्रोजेक्ट्स को सिक्योर, तो मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी मनीष, आपकी आवाज कट रही है। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार ट्राई करेंगे। हेलो, हाँ, अभी ठीक है। यस, यस, अभी आ रही यस है? मनीष। हाँ, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तो हाँ, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि कैसा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे ये। हाँ हाँ हाँ, आजकल कंपनीज में बहुत डिमांड है साइबर सिक्योरिटी कंपनीज में, कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन वेबसाइट्स बन रही हैं, और जो नेटवर्क्स हैं कंपनीज के, जो क्लाउड पे जो चीजें होस्ट हो रही हैं, उसको सिक्योर करने के लिए उनको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की जरूरत होती है, जो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और मैं अभी एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहा हूँ, सिक्योर और नेटवर्क सिक्योर और क्लाउड सिक्योरिटी। तो इसमें आप अपना कैरियर कैरियर बनाने के लिए आपको पहले साइबर सिक्योरिटी के कुछ कोर्सेज करने होंगे, एथिकल हैकिंग के, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब कि सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो ये कोर्स अप्लाई कर सकते हो कंपनीज में। एक सवाल अमितेश ओझा की तरफ से कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन। पासवर्ड, हाँ, जो पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं लोग, जिसके अंदर हम याद करने की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर सेव कर सकते हैं लॉट ऑफ पासवर्ड्स, क्या आप रिकमेंड करते हो उसको यूज करना? हम्म। जो पासवर्ड आप ब्राउजर में सेव करते हो उसके लिए, राइट? हाँ, जो ब्राउजर से कनेक्ट करते हो तो उसमें ऑटो सेव करने का हेलो। आता है। ऑटो सेव, हाँ, ऑटो सेव हो जाता है। हाँ और बहुत हाँ। सारे पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं एक ही पासवर्ड मैनेजर पे। तो क्या वो पासवर्ड मैनेजर का यूज करना आपको लगता है इट इज रिकमेंडेड? नो, अगर सिस्टम सिर्फ केवल आप यूज कर रहे हो, इन एनी केस कि आप अपना सिस्टम किसी और को नहीं दे रहे हो, और कोई चांस नहीं है कि ये आपकी फैमिली में या कोई फ्रेंड्स एंड कोई भी नहीं है आपके नेटवर्क में, देन आप सेव कर सकते हो। और अगर आपका लैपटॉप आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली मेंबर्स या कोई भी यूज कर रहा है, तो आपको सेव नहीं करना चाहिए। और बहुत ही जो कॉन्फिडेंशियल साइट्स होती है, बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है, उनका पासवर्ड कभी भी सेव नहीं करना चाहिए। मनीष, मेरा एक सवाल है इसके अंदर कि हम जब हमारे पास ईमेल आते हैं, ऐसे अननोन, ऐसे बिना काम के ईमेल आते हैं, उसको हम अनसब्सक्राइब करते हैं तो भी ईमेल आते हैं, मतलब हम अनसब्सक्राइब करने के बाद भी वो वैसे मेल को रिसीव करते हैं। लेट्स से मेरे पास kishan@abc.com से मैंने ईमेल आया था, उसको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। उसको अनसब्सक्राइब किया तो मेरे पास कहीं और से आ गया।
कि किसी और मेल से आ गया, तो मतलब ये सीरीज बंद ही नहीं होती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन बता सकते हो आप? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो अपना जैसे कौन से ईमेल आईडी, जीमेल के लिए बात कर रहे हो या ऑफिशियल ईमेल के लिए? मैं जीमेल बात कर रहा हूँ, जीमेल पे कहीं से मेल आता है हमारे पास और वो एडवर्टाइजमेंट होता ठीक है, है, मैं बता रहा हूँ। तो अनसब्सक्राइब करते हैं, तो फिर भी कहीं और से आ जाता है। तो आज के टाइम पे जो बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग का टाइम आ गया है, और बहुत ही एकदम बहुत ही बाढ़ आ रही है मार्केटिंग की, कि जहां से डेटा मिल जाए बस, कि मुझे बस मार्केटिंग करनी है ना, हर जगह से मार्केटिंग हो रही है। तो उस केस में अगर आप अपने आप को कैसे थोड़ा सा प्राइवेसी में रख सकते हो, कि आप अपने 2 ईमेल अकाउंट बना के रखें, कि एक ऐसा ईमेल अकाउंट कि जो कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग में यूज हो रहा है, और जहाँ पे जैसे हमारी जो मीटिंग हो रही है या ऑफिशियल कन्वर्सेशन के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, है ना। दूसरा ईमेल आप ऐसा यूज रख सकते हो जहाँ पे आपको कहीं पे भी, नॉर्मल वेबसाइट पे कहीं पे भी मार्केटिंग मार्केटिंग एकदम जो जनरल लाइफ में जो यूज हो रहा है, वहां पे आप उस जीमेल को यूज कर सकते हो, ताकि जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं वो आपके स्किप ना हो। और अनसब्सक्राइब करने के बाद भी अगर आप मेल्स आ रहे हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो फर्जी लोग हैं जो आपको बार बार मेल्स भेज रहे हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, एक सवाल मेरा और है, ये ईमेल सर्विसेज के अंदर सबसे बेस्ट किसकी सर्विस है? माइक्रोसॉफ्ट के जो ईमेल क्लाइंट है वो जीमेल का क्लाइंट है, बिगरॉक का क्लाइंट है, गोडैडी क्लाइंट है, किसका क्लाइंट जो है ईमेल के लिए सबसे बेस्ट एंड सिक्योर है? हाँ, ये बेस्ट मेरे हिसाब से जो है वो आउटलुक ज्यादा सिक्योर है, इन केस ऑफ लाइक जंक मेल्स और स्पैम और इन सबको डिटेक्ट करने में। ठीक है, क्या ये भीम और यूपीआई ओके, वगैरह जो होती हैं ये भी हैक हो सकती हैं क्या? ना वो हैक नहीं हो सकती हैं। वो ओके जहां तक वो हैक इसलिए नहीं हो सकती हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट जो अपने ये जो भीम ऐप और ये जो सर्वर्स और ये जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही हाई हो रहा है, तो जो भी वो है हर वो एक है। ठीक है, आई थिंक हम सेशन, के हेलो, आई थिंक हम सेशन को अब हाँ क्लोज गूगल करते हैं, साढ़े 5। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीष, मनीष मनीष हेलो जी मनीष, हेलो। हाँ जी हाँ, अब ठीक है तो मनीष जी। हेलो। जी मनीष, तो मेनवाइल मैं पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वेबसाइट पे जाएं www.ishare.in पे, और आप ये पैनल देखोगे जब ज्वाइन मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप 3 साल की मेंबरशिप या 10 साल की मेंबरशिप को सिलेक्ट करके आप ज्वाइन कर किशन जी सकते हैं। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रखा है किशन जी। ओके ओके, जी जी, ओके, थैंक राइट। तो मैं अब वापस ये कहूँगा कि ये मेंबर जो वेबसाइट पे आप जाएं और वेबसाइट पे जाके अपनी जो 3 साल की मेंबरशिप 10 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं वापस एनाम साहब को दूंगा कि आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए। एनाम साहब। थैंक यू मिस्टर किशन। अब मैं हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं मिस्टर पी.के. आनंद सर, उनको बुलाना चाहूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। काफी अच्छा सेशन रहा। आनंद साहब प्लीज। आनंद आनंद हेलो। सर प्लीज। या हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस यस बिल्कुल सर। सर। हाँ, मैं बिफोर वोट ऑफ थिंग्स
मैं मनीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा टाइम नहीं आ पाया, तो मैं एक दो क्वेश्चन इनसे दो क्वेरीज मैं पूछना चाहूंगा शॉर्ट में। एक तो क्वेरी ये है कि अगर मान लीजिए कोई बैंक फ्रॉड होता है, इस तरह से पेमेंट निकल जाता है, तो क्या बैंक की कोई उसमें लायबिलिटी होती है कि नहीं होती है? अगर और दूसरा, हेलो, हाँ जी, यस, हाँ, हेलो, मैं समझ गया आप क्या पूछना, हाँ, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, अगर कोई ऐसा फ्रॉड होता है कि जिसमें मनी फ्रॉड हो गया आपका, और आपने ओटीपी डाला है और सब कुछ आपके एग्रीमेंट से हुआ है, लाइक जैसे आपके फोन पे ओटीपी आया, आपने ओटीपी डाला है और उसके बाद ट्रांजैक्शन हुआ है, आपके मोबाइल पे ओटीपी आया, ऑलराइट। तो उस केस में बैंक के पास में कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको वापस से अमाउंट आपके अकाउंट में डालेगा, क्योंकि आपका फोन अगर हैक हो रहा है, कोई आपके फोन को कंट्रोल कर रहा है, देन ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फोन को सेफ रखने की बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए एवरी पर्सन को अवेयर रहना बहुत जरूरी है अपने लिए, क्योंकि कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं ले रहा है। आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनकी इनकी सेफ्टी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नहीं, इस केस में अगर बता रहा हूँ, इसमें सॉरी, इस केस में क्या हुआ है, मेरा नेफ्यू है, उसका 3 लाख रुपया निकला और उसने कोई ओटीपी नहीं दिया, लेकिन उसके पास में मैसेज आया है करीबन घंटे 2 घंटे बाद में कि तुम्हारे इस अकाउंट से 3 लाख रुपए निकल गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो केसेस हैं, सबसे पहले तो साइबर क्राइम में आपको केस करना होगा। साइबर क्राइम में केस करने के बाद वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हुआ है। अगर वो आपके फोन को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाले आपके फोन को चेक करेंगे, अगर आपका फोन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपका फोन सेफ है, सिक्योर है, देन वो उसको ये चेक करेंगे कि ये हुआ कैसे है ट्रांजेक्शन, है ना, बैंक के ऐप से हुआ है या किससे हुआ है। तो जो भी उसमें रेस्पॉन्सिबल होगा, अगर बैंक रेस्पॉन्सिबल है तो फिर वो बैंक पे पेनल्टी होगी। अगर आपके तरफ से अगर चीजें हुई हैं तो फिर बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसमें। इन सच तो ये केसेस व्हाट शुड इन्वेस्टिगेशन, यू डू? ऐसा 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 बंदा, वो उसमें इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए? तो अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो इमीडिएटली आपको साइबर क्राइम में केस रजिस्टर करवाना चाहिए और उनको जो है एक्टिवली तरीके से उसको फॉलो अप करना चाहिए। जहां तक मैं आपको बता दूं, इंडियन इंडियन जो लीगल सिस्टम है, पुलिस डिपार्टमेंट आजकल इनको सीरियस नहीं लेते हैं। तो जितना आपकी अप्रोचेज हैं उसको आप अच्छे से यूज करें। एक आम आदमी के अकाउंट से अगर ऐसा हो जाता है, या अगर हम बात करें अभी लॉकडाउन के टाइम पे, तो अगर आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो इम्पॉसिबल है, उस पर इन्वेस्टिगेशन किसी भी कीमत पे नहीं होगी। और ये जो लॉकडाउन का चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। इसमें आप अपने आप को सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन केस साइबर क्राइम। अनदर क्वेश्चन इज, जो अभी समझिए और 2 महीने बाद में आने वाला है, इसमें क्या हुआ है कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति? हेलो, हाँ, वो मैंने सुना था। हाँ हाँ, हेलो। कौन बड़े करोड़पति में है, और उसके साथ में प्ले अलोंग है, इसमें ज्यादातर क्या हाउस वाइफ्स वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये दो दो हाँ हाँ। दो टाइम मेरे साथ में, माय वाइफ आई वाज आल्सो हियरिंग इट टुडे। एक उनके पास में आया, एक मेरी साली है उनके पास में आया कि, और मैसेज भी व्हाट्सएप के थ्रू आया है, फोन हुआ कि साहब इस तरह आपका जो है, आपका 1 लाख रुपया आपका प्राइस निकला है, तो आपको भी एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी पे आप अपनी जो है शेयर करिएगा डिटेल, लेकिन जब तक ओटीपी नहीं आता है आप अपना व्हाट्सएप कम से कम 10 मिनट तक बंद नहीं करेंगे। ओके। अब इन सच कंडीशन, मैं यहाँ पर था नहीं, शी कॉल्ड मी, मेरे को, मेरे बेटे को और 2-3 जो कॉल किया, कोई रिस्पांस मिल नहीं पा रहा था, तो इन्होंने इमीडिएटली क्या किया, अपना व्हाट्सएप ही जो है इमीडिएटली व्हाट्सएप अकाउंट जो है उसको डिलीट कर दिया। सेम मैसेज इसी तरह का 2-3 दिन बाद मेरी छोटी साली है उसको भी गया। अब इस हालत में क्या करना चाहिए इन लोगों को? तो अगर कोई ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, अगर वो आपको बोल रहा है व्हाट्सएप बंद मत करो, तो व्हाट्सएप से कुछ भी नहीं होगा। फॉर योर कन्फर्मेशन कि
व्हाट्सएप बंद करो या ओपन रखो, उससे कुछ नहीं होगा। और रही बात ओटीपी की, तो ओटीपी अगर कोई आ रहा है आपके पास में तो उसको शेयर मत करो, किसी भी टाइप की नहीं ओटीपी को करते। आपको शेयर नहीं करना है, बस दैट्स हम्म। इट। मैसेज तो कोई भी कर सकता है, मैं भी आपको मैसेज अभी अगर आप व्हाट्सएप पे करूँ तो आप कितनी बार अनइंस्टॉल करोगे व्हाट्सएप को? शी इज ओनली हियर, शी सेज कि मैंने ओटीपी भी शेयर कर दिया था। कर दिया था, वाह। हाँ, ओटीपी शेयर कर दिया है इन्होंने, फिर क्या हुआ उसका? उसके बाद फिर वो हैंग हो गया। अच्छा। मेरा फोन हैंग हो गया, वो बंद ही नहीं हो रहा था व्हाट्सएप। फिर मैंने डिलीट किया। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी सुना आपने? हाँ मैं सुन लिया हूँ। तो हाँ अब ओटीपी जो आपने दिया है वो आपके फोन में क्या पता कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हो, तब आपका डिटेल वहां पे गया हो उन लोगों के पास में जो आपको टारगेट किया है उन्होंने, हो सकता। यस, शी सेज कि मेरे एक एप्लीकेशन आई थी, उसको मैंने डाउनलोड किया था। उसका क्लिक यस किया। यस हाँ, तब। हाँ तो वो बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाती हैं, बहुत ही क्लिक करते ही आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट 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 आप करोगे और वो फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर वो क्या नहीं, जब करते हैं? मेरे को ओटीपी देनी है तो मैं बिल्कुल इन सब चीजों के लिए अनजान थी, तो मैंने कहा मैं ओटीपी कैसे दूंगी, आपसे तो मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही है। तो उसने कहा अच्छा मैं बंद करता हूँ, आप जैसे, फिर मैं आपको 2 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। उनका दोबारा 2 मिनट कॉल आया और मैंने बेवकूफी की तरह वो ओटीपी उनको दे दिया। अब वो आपका फोन फिर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये कब की बात है? ये हो गया, इसको 1.5 साल हो गया। उसके बाद फिर मेरा ये हैंग हो गया, ना इसमें कोई कॉल आ रही थी ना ये बंद हो रहा था व्हाट्सएप। तब हाँ फिर वो मैंने आपका इसको व्हाट्सएप दिमाग लगा के व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया। ओके। नहीं, आपके फोन में कोई ऐप इंस्टॉल हो गया था जिसके थ्रू वो आपका फोन हाँ, को कंट्रोल क्या कर रहा था? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब ऐसे ऐसे में मतलब ये है कि इनको क्या करना चाहिए, फोन स्विच ऑफ कर दिया, सब सबसे कर दिया। वो जी फोन को पूरे जो है, जैसे आप लोग हैं इतना टेक्निकल नहीं है कि आप पर्टिकुलर उस ऐप को ढूंढ के उसको अनइंस्टॉल कर पाए सर्विसेज में जाके। तो सिंपली अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप पूरा मोबाइल स्टोर पे जाके, या कोई अगर कोई टेक्निकली है फुल्ली कि कोई कंप्यूटर साइंस से कोई बंदा है जानकार, तो आप उससे आप बोल सकते हो कि यार ये इसमें गलती से एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है और तुम देख लो कौन कौन से ऐप्स जो हैं अननोन ऐप्स हैं वो उसको अनइंस्टॉल कर दे। और अगर वो भी आपको आपके नेटवर्क में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो फिर आप उसमें नए सॉफ्टवेयर डलवा सकते हो मोबाइल में। थैंक यू। थैंक यू। मनीष जी, व्यू हमारे पिछले एक महीने में देयर वर सो मेनी वेबिनार्स एंड these were all having different subjects. Most of them were the technical subjects, but this subject was today which is touching to each and everyone. और मेरा ख्याल है इसमें मैं तो सोचता हूँ कि टाइम भी कम है, और दूसरा जो हमने इसको सुनने वाले लिए हैं, हम अटेंडीज हैं, इसमें सिर्फ ईश्वरी क्या या इसमें तो बच्चे और हाउस वाइफ्स और सभी के सभी इसमें सुन सकते हैं इसको। एंड इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। उसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं सर, और मैं किशन से कह रहा हूं कि इन फ्यूचर जो औरों की क्वेरीज भी हैं सर आपको पास ऑन करते रहेंगे और आप उनका हमको रिस्पांस देते रहेंगे। आई एम सो थैंकफुल टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू टू द गाइस कि या उनका कुछ मनी सेव हो सके, जो हार्ड अर्न मनी है वो सेव या हो सके। मेरी सर, इट विल बी थैंक यू प्लेजर फॉर सर, मी। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू। थैंक यू। फाइनल conclusion ईशा की टीम के साथ करेंगे एंड देन वी विल क्लोज इट।